So now here given, what is given? F of x attains maximum at x is equal to 1, and therefore what? F dash of 1 must be equal to 0, which implies 4 into 1 cube minus 124 into 1 plus a is equal to 0. So that is 4 minus 124 plus a equal to 0. So that becomes minus 120 plus a equal to 0. So a is equal to 120. ठीक है? Yes, sir. Let's take question number 13. Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. Find two numbers whose sum is 24 and product is as large as possible. So हमें maximum product को maxima करना है basically. We need maximum product of two numbers. So in this case, let us say two numbers b. So let two numbers be x and 24 minus x. So if one number is x, then obviously another number is 24 minus x, because their sum is given as 24. Now product p is equal to x into 24 minus x, which is equal to 24x minus x square. Okay? Now here the product is a function of x, so we'll differentiate this p with respect to x, because this is basically p. So we'll get what? dp by dx, which is equal to 24 minus 2x. So dp by dx equal to 24 minus 2x. For maximum product, this dp by dx must be equal to 0. मतलब 24 minus 2x कितना होना चाहिए? It should be equal to 0. So that is 2x is equal to 24 and x is equal to 12. हमें सेकंड डेरिवेटिव से श्योर भी करना होगा कि मैक्सिमा का ये, क्योंकि हो सकता है कि ये मिनिमा का हो. हालांकि लॉजिकली वी कैन अंडरस्टैंड इट इज मैक्सिमा, तो स्टिल मैथमेटिकली हमें प्रूव करना है कि ये मैक्सिमा ही है. सो फॉर दैट वी नीड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. नाउ d square p by dx square, that is second derivative, is equal to what? 24 minus 2x का डेरिवेटिव, 24 का हो जाएगा 0 minus 2x का -2, and this -2 is free from x. It is free from x. यहाँ पर x है ही नहीं. तो अगर आपको चाहिए d square p by dx square, take this second derivative at this particular point, that is x is equal to 12. And it will come out to be -2 only. वैसे यहाँ पर x, it is irrespective of x, it is free from x, independent of x. Other language में भी बोल सकते हैं, independent of x, it does not depend upon x. So this -2, it means it is less than 0, and therefore x is equal to 12 certainly gives maximum product. ठीक है? ये x is equal to 12 certainly gives maximum product, and therefore required numbers are 12 and 24 minus 12, which is again equal to 12. So these are the two required numbers, 12 and 12. So now this is a particular question. ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें हमेशा ही आपको आंसर ऐसे मिलेगा. अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं चेंज करते जाता हूँ, 24 को मान लीजिए मैंने कर दिया 100,
24 को अगर हमने 100 कर लिया, बाकी कीपिंग द रिमेनिंग क्वेश्चन सेम, अगर 24 की जगह पर 100 लिया तो आपका आंसर क्या होगा? 50 करेक्ट, 50 40 लिया तो आंसर हो जाएगा 20 20। क्लियर है? तो ये हमेशा ही ऐसे होगा, मतलब ये सीधा हाफ पर ही आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलता है। अगर सम गिवन है और प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, सो इट विल बी ऑब्जर्व्ड एट मिड पॉइंट, मतलब सेंटर। तो 24 अगर सम है, 12 12 होगा, 50 होगा तो 25 25 होगा अकॉर्डिंगली। Let us take question number 15. Question number 15. Find two positive number x and y such that the sum is 35. Find two positive numbers x and y such that sum is 35 and the product x square y raised to 5 is maximum. Product x square y raised to 5 is maximum. Okay, now this is another question. Now here he has already given the numbers are x and y. Okay. Now according to the condition, x plus y equal to 35 and therefore y is equal to 35 minus x. And therefore product P, which is equal to x square y raised to 5 is nothing but, अब देखिए इस क्वेश्चन में 50-50 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट अलग है। प्रोडक्ट कौन सा है? x square y raised to 5। अगर प्रोडक्ट xy बोला जाता था, प्रोडक्ट कौन सा होता था? मान लीजिए xy, x into y, if that is the product, that is product of two numbers, then आंसर आपका हो जाता था 35/2, 35/2, these are the two numbers। ठीक, लेकिन इस केस में प्रोडक्ट अलग है, x square y raised to 5, मतलब x square into y raised to 5 is nothing but 35 minus x bracket raised to 5, so this is P। Clear? Now for maximum product, dp by dx is equal to 0। dp by dx हमने निकाला नहीं है, तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो dp by dx क्या होगा? It will be from u into v, first into derivative of second। सेकंड ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 into 35 minus x bracket raised to 4 into 35 minus x का डेरिवेटिव, that is -1। So first derivative of second plus second into derivative of first, and this must be equal to 0। अब दोनों से हम देख सकते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। 35 माइनस एक्स का ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, x भी कॉमन है, तो टेकिंग x एज ए कॉमन and 35 minus x bracket raised to 4 as a common, यहाँ पर देता हूं मैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट टर्म में नंबर देखिए, नंबर क्या बच गया? -1 into 5, दैट इज -5। ठीक है, x स्क्वायर में से x हमने कॉमन लिया तो x बच गया, ब्रैकेट रेस्ट टू 4 तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके, इधर प्लस साइन होगा, x हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर 2 रह जाएगा, और 35 माइनस एक्स रेस्ट टू 5 था, अब ये रेस्ट टू 4 कॉमन लिया है, इधर बचेगा 35 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। So this implies what?
x 35 माइनस एक्स रेज टू 4, और इस ब्रैकेट में कितना होगा 2 into 35 that is 70. This is minus 5x and minus 2x minus 7x, which is equal to 0. Now this implies what? This implies either this x is equal to 0 or 35 minus x equal to 0 or 70 minus 7x equal to 0. यहाँ पर x equal to 0 हुआ, इधर हुआ x equal to 35 और यहाँ पर हुआ 70 equal to 7x, मतलब x equal to 10. Now x is equal to 0 or x is equal to 35, it is not possible. ठीक है, क्योंकि दोनों भी केस में आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू 5 जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स अगर आपने 0 किया तो प्रोडक्ट हो गया 0, 35 किया तो भी y 0 हो जाएगा, अगर x को 35 किया तो y 0 हो जाएगा, तो ये दोनों भी अगर हम 0 करते हैं तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 0, मैक्सिमम प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स बोला हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ना कि 0 होगा. ठीक है, तो इन दोनों भी केस में प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 0. ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है, तो हमारे लिए बचता है चेक करने के लिए पॉइंट कौन सा, x इज इक्वल टू 10. लेकिन इसे हमें फिर से श्योर कराना होगा, है ना. श्योर क्यों कराना है, क्योंकि हमने जो कंडीशन यूज किया ये वाला, दिस कंडीशन दो वी हैव रिटन इट इज फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट, इट मे गिव मिनिमम प्रोडक्ट थ्योरेटिकली ऑन पेपर. तो हमें मैथमेटिकली प्रूव करना होगा कि x इज इक्वल टू 10 जो है ये आपका आंसर वैलिड कब होगा, जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों में से सर्टन हो जाएगा, श्योर हो जाएगा कि भाई यस दिस इज योर आंसर. तो हमें यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव से भी आप प्रूव कर सकते हैं, बट एज यू कैन सी फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड आया था हमारा. यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, मैं यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव उठा लेता हूँ, आप इसे इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यहाँ पर निकाला, ये है, सिंप्लीफाई करते करते दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ फ्रॉम 1 dp by dx is equal to x 35 minus x plus 4 और 70 minus 7x. हमें चेक कहाँ पर करना है, x इक्वल टू 10. अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए इट इज नॉट क्वाइट इजी टू फाइंड आउट सेकंड डेरिवेटिव, है ना. आर यू देयर भैया? यस सर. हेलो. हाँ हाँ, ओके. तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना इज नॉट क्वाइट इजी. u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फार्मूला लगेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के भी काम नहीं होता है, फिर उसमें हमें वैल्यू डालनी होती है, x की वैल्यू 10. So it will become a huge complex problem. Rather than that, if it is mentioned in the form of factors, we can check the sign of first derivative itself. ठीक है, so we'll check for x is equal to 10. So when x is slightly less than 10, when x is slightly less than 10, dp by dx का साइन क्या होगा, देखिए x is slightly less than 10, लेकिन है तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब x कैसा होगा यहाँ पर पॉजिटिव. दूसरे ब्रैकेट में 35 माइनस एक्स, अब x जो है 10 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो 35 माइनस जो भी होगा ब्रैकेट रेज़ टू वैसे ही 4 है, तो चलिए सोचने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट रेज़ टू 4 है ना, तो ऑलवेज इट इज पॉजिटिव. एंड ये जो होगा ये आपका कंसिडरेशन वाला पॉइंट है. x जब 10 से थोड़ा सा कम होगा तो 7x 70 से कम होगा. अब 70 से कम होगा मतलब ब्रैकेट का आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, आंसर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. और जब x स्लाइटली ग्रेटर देन होगा तब देखते हैं, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 10, इन दैट केस dp by dx क्या हो जाएगा, अब स्लाइटली ग्रेटर देन 10 है
तो x है वैसे वो पॉजिटिव ही रहेगा 10 पॉइंट समथिंग बट इट इज पॉजिटिव ब्रैकेट रेस टू 4 है वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। अब जब x 10 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो 7 into x will be somewhat greater than 70. So 70 minus a number which is greater than 70, it will generate a negative answer for this final bracket. And then it becomes minus. And therefore, what you can say, therefore dp by dx changes sign from positive to negative at x is equal to 10, and therefore x is equal to 10 is certainly a point of maxima. है ना, इस तरह से चेंज हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा हो जाएगा। एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 एंड दूसरा नंबर कौन सा होगा आपका 35 माइनस x मतलब 35 माइनस 10 which is equal to 25। So is it clear up to this, dear? Yes, sir.